گوری کبھی کے گھر کے پاس پھولوں کا باغیچہ تھا۔ ایک دن سویٹو بکری کا چھوٹا بیٹا گھاس چرتے چرتے گوری کبھی کے باغیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ باغیچے میں گلاب کے پھول تھے۔ گلاب کے پھول تو میرے فیورٹ ہیں، میں جی بھر کے گلاب کے پھول کھاؤں گا۔ بکری کا بیٹا گلاب کے پھول کھانے لگتا ہے۔ گوری کبھی کھڑکی سے بکری کے بیٹے کو گلاب کے پھول کھاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ گوری کبھی شور مچاتی ہے، کھا گیا کم وقت بکری کا بیٹا میرے گلاب کے پھول کھا گیا، میں ابھی سے دیکھتی ہوں۔ گوری کبھی لاٹھی اٹھا کر جاتی ہے اور بکری کے بیٹے کی دم پر مارتی ہے۔ مت مارے کبھی آنٹی، مجھے مت مارے، میں نے کوئی شرارت نہیں کی، میرا کیا دوش ہے، آپ مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ کم وقت، تو نے میرے سارے گلاب کے پھول کھا لیے اور پوچھ رہے ہو میرا کیا دوش ہے؟ سوری، معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گلاب آپ کے ہیں، میں سمجھا یہ جنگل میں اگے ہوئے گلاب ہیں، انہیں کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ بکری کا بچہ روتا ہوا اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اپنی ماما کو جا کر بتاتا ہے، مجھے گوری کبھی نے مارا ہے، دیکھیں گوری کبھی نے میری پونچھ پر لاٹھی ماری۔ بیٹا، آپ نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی، آپ نے کیا کیا تھا جو گوری کبھی نے آپ کو مارا؟ گوری آنٹی کے گھر کے باہر گلاب کے پھول تھے، میں نے کچھ گلاب کے پھول کھا لیے۔ اسے آپ کو سمجھانا چاہیے تھا، بچوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں، مارتے نہیں، اس نے غلط کیا۔ لیکن بیٹا، آپ دوبارہ گوری کبھی کے گھر کی طرف مت جانا۔ پھر ایک دن رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا اور کوکو اپنی مما سے کہتے ہیں، مما مجھے کھیر کھانی ہے، مما مجھے کھیر بنا دے، اتنے دن ہو گئے میں نے کھیر نہیں کھائی۔ میں بھی کھیر کھاؤں گا، مما میں بھی کھیر کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے بچوں، میں ابھی بکری کے پاس جاتی ہوں اور بکری سے کچھ دودھ لے کر آتی ہوں اور رات کو آپ کو کھیر بنا دوں گی۔ پھر رانو چڑیا بالٹی لے کر سویٹو بکری کے گھر جاتی ہے۔ سویٹو بکری، میرے بچے کھیر مانگ رہے ہیں، مجھے اپنا تھوڑا سا دودھ دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کو کھیر بنا کر دے سکوں۔ رانو چڑیا، مجھے آپ کو دودھ دینے میں بہت خوشی ہوگی، آپ میرا دودھ نکال لیں اور اپنے بچوں کو میرے میٹھے دودھ سے میٹھی کھیر بنا کر دیں۔ رانو چڑیا بکری کا دودھ نکالتی ہے اور اپنے گھر جا کر کھیر بناتی ہے۔ کیا بیٹی، ابھی کھیر گرم ہے، میں تھوڑی دیر کھیر گوری کبھی کی فریج میں رکھاتی ہوں، جب کھیر ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم کھائیں گے۔ رانو چڑیا گوری کبھی کے پاس جاتی ہے۔ گوری بہن، میں نے کھیر بنائی تھی، آپ میری کھیر تھوڑی دیر اپنی فریج میں رکھ لیں تاکہ ٹھنڈی ہو جائے۔ کھیر؟ میں بھی کھیر کھاؤں گا، مما مجھے بھی کھیر بنا کر دیں۔ رانو چڑیا، تو نے کھیر بنانے کے لیے دودھ کہاں سے لیا تھا؟ گوری بہن، میں سویٹو بکری کے پاس گئی تھی، سویٹو بکری نے مجھے اپنا میٹھا دودھ دیا اور میں نے اپنے بچوں کے لیے کھیر بنائی۔ تھوڑی دیر بعد رانو چڑیا ٹھنڈی کھیر اپنے گھر لے جاتی ہے اور اپنے بچوں کو پروستی ہے۔ بچے ٹھنڈی کھیر کھا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اچھا چپ کر جاؤ بیٹا، میں بھی جاتی ہوں، میں سویٹو بکری کے پاس جاتی ہوں اور اس کا میٹھا دودھ لاتی ہوں۔ گوری کبھی بھی بالٹی اٹھاتی ہے اور سویٹو بکری کے پاس دودھ لینے چلی جاتی ہے۔ بکری، مجھے اپنا تھوڑا سا دودھ دے دو، میرا جگو بیٹا کھیر مانگ رہا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو کھیر بنا کر دینی ہے۔ کیوں جی، میں آپ کو اپنا میٹھا دودھ کیوں دوں؟ آپ نے اس دن میرے بیٹے کو کیوں مارا تھا؟ بکری، آپ کے بیٹے نے میرے گلاب کے پھول کھائے تھے، اس لیے میں نے اسے 2 لگا دی تھی۔ گوری کبھی، پتہ ہے میرا بیٹا گھر آ کر رو رہا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ میرے بیٹے کو پیار سے سمجھاتی۔ پیار سے بچے ہر بات سمجھ جاتے ہیں، لیکن اگر بچوں کو ماریں یا زیادہ ڈانٹ کریں تو بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں بہن بکری، سچ میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سویٹو بکری گوری کبھی کو اپنا میٹھا دودھ دے دیتی ہے۔ گوری کبھی سویٹو بکری کا دودھ لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ گوری کبھی کھیر بناتی ہے اور فریج میں ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھ دیتی ہے۔
जैसे ही रात होती है जग्गू कवि की नानो उनके घर आ जाती है। साथ गौरी कवि का भाई भी था। मामा जी, मेरे मामा जी आए हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो आप और भाई आज मेरे घर आ गए। मैंने आज खीर बनाई थी, मैं अभी आपको ठंडी खीर देती हूँ। गौरी बेटी, मुझे तो खीर बहुत पसंद है। हमारे जंगल में तो खालिस दूध ही नहीं मिलता। कितने ही दिनों से सोच रही थी अगर खालिस दूध मिले तो खीर बना कर खाऊं। गौरी कवि ठंडी खीर अपनी माँ और भाई को देती है। गौरी कवि का भाई और माँ ठंडी खीर खाकर खुश हो जाते हैं। जग्गू भांजे, ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। बहन गौरी, आपने खीर बनाने के लिए दूध कहाँ से लिया था? भाई, हमारे जंगल में एक बकरी है जिसका नाम स्वीटो है। मैंने ये दूध स्वीटो बकरी से लिया था। रानू चिड़िया और उसके बच्चे जब भी जंगल जाते वो जमीन पर गिरे हुए फल इकट्ठे कर लेते और टोकरी में डालकर स्वीटो बकरी के बच्चों को दे आते। इसलिए स्वीटो बकरी चिड़िया से बहुत खुश थी। शुक्रिया रानू चिड़िया, आप हमारे लिए हर रोज मीठे फल लाती हैं। आपका भी शुक्रिया बकरी, आप हमें मीठा दूध देती हो जिससे मीठी खीर बनती है। दूसरे दिन गौरी कवि की माँ और भाई जाने की तैयारी करते हैं। गौरी कवि की माँ गौरी कवि से कहती है, बेटी गौरी, अगर बाल्टी में हमें थोड़ा सा दूध ला दो तो हम भी घर जाकर खीर बना लेंगे। मीठी खीर तुम्हारी बहन को भी बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं अभी स्वीटो बकरी के पास जाती हूँ और उसे थोड़ा सा दूध लाती हूँ। बकरी, क्या आज फिर तुम मुझे अपना थोड़ा सा दूध दे दोगी? नहीं, आज तो मैं तुम्हें अपना दूध बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि आज मैं अपना दूध तोते को दूंगी। तोता मेरे लिए मीठा फल लाया था। स्वीटो बकरी, मेरी इज्जत का सवाल है। आज मेरी माँ और भाई आए हुए हैं, वो दूध मांग रहे हैं। उन्होंने घर जाकर खीर बनानी है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मेरा दूध ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि माँ जी और भाई के सामने आपकी बेइज्जती हो। फिर गौरी कवि स्वीटो बकरी का दूध ले जाती है। गौरी कवि की माँ और भाई दूध लेकर वापस चले जाते हैं। आज शाम गौरी कवि बागीचे से फूल तोड़ रही थी। गौरी कवि फूलों की टोकरी भरती है और फूल लेकर स्वीटो बकरी के पास चली जाती है। स्वीटो बकरी का बेटा गुलाब के फूल देखकर बहुत खुश होता है। मम्मा, क्या मैं गुलाब के फूल खा लूं? मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद है। नहीं बेटा, गुलाब के फूल मत खाना। ये तो गौरी कवि लाई है, ये गौरी कवि के हैं। अगर फूल खाए तो गौरी कवि उस दिन की तरह आपको मारेगी। बकरी बहन, अब मुझे इतना भी शर्मिंदा मत करें। मैं ये फूल आपके लिए और आपके बेटे के लिए ही लाई हूँ। अगर आप अपना मीठा ताज़ा दूध मुझे दे सकती हो तो मैं भी अपने बागीचे के फूल तुम्हें दे सकती हूँ। ये सुनकर बकरी का बेटा जल्दी से फूल खाने लगता है। स्वीटो बकरी को भी फूल पसंद थे। स्वीटो बकरी भी जी भरकर गुलाब के फूल खाती है। फिर गौरी कवि की स्वीटो बकरी से दोस्ती हो जाती है और सभी मिलजुल कर जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू कौवा रानो चिड़िया के बेटे कुकू से कहता है, कुकू, मैंने एक दिन पहाड़ों के पास एक खरबूजे की बेल देखी थी। उस पर 2 खरबूजे भी लगे हुए थे। चलो हम आज वो खरबूजे खाने जाते हैं। जग्गू दोस्त, क्या वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, वहाँ कोई खतरा नहीं है। मैं पहले भी कई बार वहाँ जा चुका हूँ और हम यूं गए और यूं आए। कुकू जग्गू की बात मान लेता है और जग्गू कौवे के साथ पहाड़ों की तरफ खरबूजा खाने चला जाता है। दोनों दोस्त उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास पहुँच जाते हैं। जग्गू कौवा कुकू को खरबूजे की बेल के पास ले जाता है। बेल पर सिर्फ एक ही पका हुआ खरबूजा लगा हुआ था। जग्गू दोस्त, यहाँ तो बेल पर एक ही खरबूजा है। हाँ, शायद दूसरा खरबूजा कोई तोड़ कर ले गया। ये खरबूजा तो मैं खाऊंगा। नहीं, हम ये खरबूजा आधा आधा खाएंगे। ये मैंने देखा था, इसलिए ये खरबूजा मैं ही खाऊंगा। अगर ऐसा ही करना था तो तुम मुझे साथ क्यों लेकर आए थे?
अब ये खरबूजा आधा मेरा और आधा तुम्हारा है। जग्गू वो खरबूजा खुद ही खाना चाहता था, लेकिन वो झूठ कहता है। ठीक है, हम ये खरबूजा बेल से तोड़कर नदी के पास ले जाते हैं और फिर वहाँ चाकू से काटकर आधा आधा कर लेंगे। कुकू मान जाता है। जग्गू खरबूजा बेल से तोड़ लेता है और वो वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए जग्गू कौवे को एक घर नजर आता है। जग्गू कौवा वहाँ रुकता है और कुकू से कहता है, कुकू कुकू, वो देखो घर का दरवाजा खुला है, तुम उस घर से चाकू लेकर आओ और हम ये खरबूजा काट कर आधा आधा बांट लेते हैं। कुकू जग्गू की बात मानकर उस घर में चला जाता है। घर में कोई भी नहीं था। कुकू आवाज देता है, कोई है? कोई यहाँ है? जग्गू जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और कुंडी लगा देता है। दरवाजा खोलो जग्गू, जग्गू दरवाजा खोलो, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? जग्गू खिड़की के पास जाकर कुकू से कहता है, क्योंकि अब ये खरबूजा मैं पूरा खाऊंगा, बाय, मैं तो चला। जग्गू कुकू को उस अजनबी घर में बंद करके वहाँ से चला जाता है। जग्गू मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम पूरा ही खरबूजा खा लेना, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जग्गू जल्दी जल्दी से उड़ता हुआ नदी के पास चला जाता है और नदी के पास जाकर बैठकर जग्गू वो खरबूजा खाने लगता है। भूखी माही चील जग्गू कौवे के पास खरबूजा देखकर वहाँ आ जाती है। मीठा मीठा खरबूजा, लाओ छोटे कौवे, तुम ये खरबूजा मुझे दे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ये खरबूजा मेरा है। देते हो या मैं तुम्हें ही खा लूं। जग्गू वहाँ से भागने के लिए उड़ता है, लेकिन माही चील तेजी से जग्गू को पकड़ लेती है और अपनी तेज चोंच से जग्गू को घायल कर देती है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, प्यार की जुबान तो समझ ही नहीं रहा। चील खरबूजा उठाकर वहाँ से चली जाती है और जग्गू घायल होकर मदद की गुहार लगाता है। मेरा पंख घायल हो गया है, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो जग्गू कौवे की मदद करता। जग्गू उड़ नहीं सकता था क्योंकि उसके पंख से खून बह रहा था। उधर कुकू खिड़की से आते जाते पक्षियों को आवाजें दे रहा था। दूर से एक तोता गुजरता है। कुकू तोते को आवाज देता है, तोते अंकल मेरी मदद करें। तोता कुकू की आवाज सुनकर उस तरफ आता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, क्या हुआ? क्या तुम मुश्किल में हो? अंकल, मेरा दोस्त मुझे यहाँ बंद करके भाग गया है, प्लीज बाहर से दरवाजे की कुंडी खोल दें। तोता जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोल देता है। ऐसे शरारती दोस्तों से हमेशा बचकर ही रहते हैं। अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मैं आइंदा ऐसे दोस्तों से दूर ही रहूंगा। कुकू सुख का सांस लेता है और वहाँ से उड़ता है। जब कुकू नदी के पास से गुजरता है तो वो जग्गू को घायल हालत में गिरा हुआ देख लेता है। कुकू वहाँ आ जाता है। जग्गू, क्या हुआ? तुम्हारे पंख से तो खून बह रहा है। कुकू, चील मेरा खरबूजा छीन कर ले गई और मुझे घायल कर गई है, मेरी मदद करो। मैं अभी आपके पापा को बुला कर लाता हूँ। कुकू तेजी से उड़ता है और जग्गू कौवे के पापा के पास जाता है। अंकल, जग्गू को चील ने घायल कर दिया है। ये सुनकर जग्गू का पापा कालू कौवा घबरा जाता है। कहाँ है कुकू? मेरा जग्गू कहाँ है? अंकल, वो नदी के पास है। कालू कौवा भागता है और जग्गू के पास जाता है और जग्गू को उठाकर अपने घर ले आता है। कालू कौवा जग्गू कौवे की मरहम पट्टी करता है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। अब जग्गू ठीक हो गया था। पापा, मैं अब ठीक हूँ, मैं अपने दोस्त कुकू से मिलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ बेटा, लेकिन जल्दी घर आ जाना। फिर जग्गू कौवा कुकू के पास जाता है। कुकू दोस्त, उस दिन मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरे दोस्त, चलें हम इकट्ठे जंगल घूमने जाते हैं। तुम मुश्किल में थे इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन अब तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि उस दिन आधे खरबूजे के लिए तुम मुझे उस घर में बंद करके भाग आए थे। ये सुनकर जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है और वहाँ से उड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में काम आए, और जो धोखा दे वो कभी दोस्त नहीं होता।